मेरी बेटी ने मैंने फ़ोन कराया जी 9ਵੀਂ ਦੀ अल्ट्रासाउंड दिखाने वाला था मैंने। वो कहनी मम्मी आ जा भी मैंने दिखा जा। मैं आई 9 बजे से ही जी 9 बजे आई तो मेरा जमाई अंदर था, कुड़ी मेरी बाहर थी। तो मैं बैठ गई बैड ते आके, मैनू कहती कुड़ी मम्मी भी मेरे परौने ने पुछ ला चलिए आप दोए जणियां। माँ पुत्त चलिए बाहर नूं लंघ गया जी। मैनू मेरी कुड़ी ने लैके पानी दे दिया जी। 2 मिनट बाद मैनू धक्के मार के बाहर कढ़न लगे जी भी मैनू मैं अड्डे ते भागी जी। हाँ मेरे भतीजी जमाई आ, मैं वो बुला लिया जी। मैं फिर मचोलियां के भागी जी। मैनू बचोले बोले भी हमें उरे लियावांगे कुड़ी जी। उत्थे मेरी कुड़ी मैनू कढ़ ला उरे ते बाहर, मैनू ले कहना मैं जानदा मैं दिंदा नहीं, मेरे को सिंपल फोन था जी। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? परौना ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? गुरी है जी। ਬੋਲੋ। निक्का जी। ते फिर मैं सिंपल फोन था जी मेरे पास। मेरी बेटी बोली मैनू आ दे जा मम्मी भी मैं तेनू इहदे फोन कहना ये तो मैं भन्न देंगा जे आ फोन ले ला तो मैं भी ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ जिदन ਨੂੰ? दी ब्याही थी जी ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ? 10 महीने दी। 10 ਮਹੀਨੇ। हाँ जी ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? मैं निशा रानी ਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 10 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10 महीने दी 10 ਮਹੀਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? चल ਹਮਚੜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? मैं जी उन्होंने फांसी जाऊँ मैं उसके बाद आपको हाँ ਦੇਜ ਮੰਗਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਾਨੂੰ, ਬਸ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਬਸ, ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਮੰਮੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम करणगिरी है जी, सन ऑफ नीलगिरी पेवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ जी मैं। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ऐसा है जी, कल सुबह परसों सुबह मेरी मासी का फ़ोन आता है कि बेटे मैं कहना तो चाहूँ नहीं थी पर मेरे जमाई ने मेरे को गालां काट दी, धक्के मारे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा घरों के अंदर लड़ाई हुआ है, मैं उससे साइलेंट से बात करता हूँ। तो मैंने उसको सुबह मेरी माँ के सामने छोड़ के मैं अपनी दुकान पे जाके उसको फ़ोन किया। 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उसके साथ मेरी 2-3 बातें हुई ना, और आराम से बात हुई, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ऐसा करियो कर रही हो, मैं कहा जो थारी 3-5 है, मैं कहा आज मैं निबेड़ दूंगा, कोई दिक्कत ना मान। मैं कहा तू भी तारा बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा उसका करनी देखो। मैं कहा ये लड़ाई है, मैं कुछ नहीं डरा। मैं कहा जी तो 10:50 पे उसका मेरे पे फ़ोन आता है जब मैं घर से तैयार होकर निकलता हूँ कि वीर जी कितने हो। मैं कहा असी घंटे तक पहुँच गए तेरे को। उस तो बाद कुड़ी ने फोन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਪਰੋਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਠੰਡੇ ਠੁੰਡੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋ ਤੇ ਬਸੋ ਬਸ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ 5 ਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਹੋਰੇ 3 ਜਣੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਨਿਸ਼ੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 3rd ਪਰਸਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਡੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਜੀ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये पातना शहर में सबसे बड़ी बात जी। उसके बाद हम सदर थाने के वाले हमारे साथ 3-4 मुलाजिम जाते हैं भी तुमने कोई फालतू बात नहीं करनी, हम तुम्हारे साथ हैं, जो कार्रवाई होगी हम पूरी एन बढ़िया तरह करेंगे। मैं चलो ठीक है जी, हमारे को तो आप पे ही भरोसा है जी। उसके बाद हमारे साथ मुलाजिम वाले जाते हैं जी। उसके बाद वो लाश को उठा के उसको गाँव वाले उसको लेके नहीं आने देते थे। फिर SHO मौके पे आते हैं जी, वो बातचीत करते हैं, फिर वो उनकी गिरफ्तारी होती है 3 जने, उसके माँ की, उसके बाप की
और वो परोने की निक्के की जी गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होगी जी। उसके बाद ये कहते हैं कि वो सिटी थाने में लेके गए, सदर थाने में लेके गए, हमारे को नहीं पता जी। हमारे सामने तो उनकी गिरफ्तारी होगी, पर उसके बाद हमारे को वो सदर थाने में नहीं मिले जी। फिर सबसे बड़ी बात, उधर पहले तो वो बोलिया मेरे को कि इसने फाया ले लिया। मैं कहा अच्छा जी। फिर मैं उसके कमरे में बैठा, उस साथ मेरे साथ 2 मुलाजिम भी थे जी। मैं कहा जी कोई स्टूल स्टाल मेरे को नहीं दिखा जी, कुछ नहीं दिखा। मेरे को कुर्सी पड़ी दिखी, उसमें चुन्नी पड़ी दिखी। मैं कहा जनाब जी वो चुन्नी हो सका है। उस 2 सिविल वर्दी में मैडम में भी थी, वो कह रही ये चुन्नी नहीं है, इस पर तो गांठ होगी, अगर ये फांसी लेगी गांठ तो रहेगी, पर गांठ नहीं थी उस पर जी। एक चुन्नी बाहर पड़ी थी जी, बिल्कुल दरवाजे से बाहर। मैं कहा जी वो कभी बाहर फेंक दिया, अपन वो वाली इकट्ठी कर लेते हैं। उस पर भी कोई उस चुन्नी पे भी कोई गांठ नहीं थी। तो हम आ गए अंदर। उसके बाद एक बंदा बोलता है वहाँ पे ये तो बेड पे पड़ी मिली। मैं कहा जी अभी तो आप कह रहे थे फांसी लिया रहा, अब कह रहे बेड पे पड़ी मिली। मैं कहा जी ये क्या बात बनी? कह रहे जी बस उसके बाद उसकी आवाज़ ही नहीं निकली बंदे की। मैं ठीक है जी। हमने वहाँ से लाश इकट्ठी करी, बाहर आ गए। उसके बाद मेरे को एक गाँव का बंदा मिलता है, मैं गाड़ी में बैठा, वो कह रहा है लड़की का क्या होया ये नहीं पता हमारे को। कह रहा है इन्होंने पता क्या करा, कह रहा है डॉक्टर बुलाया जरूर देखने के लिए। मैं कहा अच्छा जी। कह रहा है इन्होंने लड़की को नहीं दिखाया, उन्होंने ये देखा है भी ये बच्चा जूंदा है कि नहीं है, बस और कुछ नहीं कराया उन्होंने। और फिर उसके बाद चौंकी में आते हैं, एक मेरे को इंचार्ज वो क्या नाम उसके हवलदार मिलते हैं एक, वो उसका नाम है मेवा सिंह। वो मेरे को बोलता है कि मेरी फलानी जगह पेवा से। मैं जी हाँ पेवा से, कह मेरी रिश्तेदारी में, चलो बढ़िया है। वो कह रहा है पक्के पे लटके लड़की नहीं मरी। मैं कहा जी कैसे, आपको कैसे पता? कह रहा मैं कल्ला पंखा देख के आया उनके घर का, भी उनके घर पे जो 6 महीने पहले धूल होती है ना, धूल मिट्टी, वही पंखे पे धूल मिट्टी है, पक्के वाला कोई एविडेंस नहीं है। और ना वहाँ कोई एविडेंस मिला, ना स्टूल मिला, ना वो मिला। मैं ठीक है जी। उसके बाद कभी वो मुंशी आते हैं, कहते हैं 304 का पर्चा दर्ज करेंगे। मैं कहा ठीक है जी, जो आपका अच्छा लगे वो करो, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं 304 भी लगा दो। मैं लगा दो जी। मैं कहा जो आपको ठीक लगता है, हमारे तो आपके पैर में ही है, हम तो आपके पैर में बैठे हैं, जो आपने करना है आपने ही करना है, हमारे को नहीं कुछ भी पता, हमारी तो मत मर गई। मैं कहा जी। उसके बाद 2 घंटे बाद SHO का फोन आता है, अभी खड़ जाओ, आधा घंटा खड़ो, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं ठीक है जी। उसके बाद रात को वो कहते हैं कि 306 का पर्चा दर्ज करना है। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा जी 306 में तो कुछ भी नहीं होगी। कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं जनाब जी, आपने पर्चा नहीं दर्ज करना। पर्चा तो दर्ज हो गया। मैं कहा जी मेरे को उसकी कॉपी दो फिर आप। कह रहे कॉपी तो लाइट नहीं है, कॉपी नहीं निकलेगी। मैं कहा फिर दर्ज कैसे हो गया जी, बगैर लाइट के पर्चा कैसे दर्ज हो गया? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? वो मेरी मुंशी के साथ बात हुई है। मुंशी वो सिविल वर्दी में थे जी, वो बंदे। ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? सिविल वर्दी में थे जी, उनका नाम नहीं मैंने देखा जी। जी। उसके बाद गया था, मेरी SHO से बात होती है। मैं कहा SHO साहब देखो जी, लड़की आपकी भी हमारी भी है। मैं कहा जी ये तो आपने हमारे को तो कोई पुलिस की इंक्वायरी से और पूरे स्वाद से नहीं आ रहा। वो कह रहे मैं उनके घर गया था, मेरे को वहाँ ग्रे कलर का स्टूल मिला जी। मैं कहा बाबू जी मेरे को तो कोई स्टूल नहीं दिखा। कह रहे जी उसके भाई के पास है ब्लू कलर का और इसके पास है ग्रे कलर का स्टूल। मैं कहा बाबू जी आप ये भी देखा है कि उसका ग्रे है उसका ब्लू है, हमारे को तो कोई स्टूल मिला ही नहीं बैठने के लिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। सानू कुछ नहीं नजर आया जी। सानू एक कुर्सी पड़ी मिली, ਉਹਦੇ ਤੇ बैग ਤੇ चुन्नी पड़ी मिली, बस उसके बाद नहीं कुछ भी मिला। मैं SHO साहब ये तो कोई बात नहीं है, आपने पर्चा नहीं दर्ज करना जी। मैं 4 बंदे हमारे रिश्तेदार बुलाएंगे जी, जो रिश्तेदार कहेंगे वो करेंगे जी। कह रहे कोई बात नहीं, ऐसे में अपनी अगर मैं कुछ करता हूँ तो ऐसी मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। SHO ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? SHO का नाम हमारे पास एक ही है जी, चरणजीत सिंह आया जी हमारे पास। तो जो SHO है उसका नाम नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਰ ਦੇ SHO ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? SHO ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ASI ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? मांग हमारी ये मांग है जी, इस केस की पूरी गहनता से जांच करके और बढ़िया जो पंजाब सरकार के द्वारा ये बदल शुरू की। साडी मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਨਿਆ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ऐसा ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। हम उतने देर ये यहाँ से संस्कार नहीं करेंगे अपनी लड़की का जब तक ये हमारे को कोई संतुष्टि पूरी अच्छी तरह नहीं मिल जाती है, ना हम यहाँ से लाश उठाएंगे जी। ये हमारी पूरी हम सारे एक ही बेनती हम पूरी सलाह करके आए जी इस बात की। मैं तेरी खुन्नन बन गई।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹਮਚੜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਰਚਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 3:05 ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਨਿੱਕਾ ਏਜਡ ਅਬਾਊਟ 20 ਇਅਰਸ ਫੀਮੇਲ ਹਮਚੜੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਬੋਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲੈਜ ਕੇਸ ਆਫ ਹੈਂਗਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਫਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।